friends. Good evening. Adab, Namaskar, Kem Cho. Welcome to a very special episode of Magic Mosaic Talking Arts with Lipi Parida. And we have with us the very famous Kanwaljit ji. Kanwaljit ji, welcome to Women TV India. And all our viewers are watching you. Kanwaljit ji. Thank you, ladies, very much. Thank you very much. Here I am. So, Crucified. so friends, welcome to this evening of magic and poetry. And Kanwaljit ji has been a star. He's a star of television who aces his roles to perfection. And he's a prominent Bollywood and television actor, as we all know, who has endeared himself to millions with his versatile roles. And his personality and the way he carries himself is something that most artists of the entertainment industry look up to. And Kanwaljit ji, we would like to. Kanwaljit ji, sorry for the interruption. Don't say sorry and thank you. Let's get down. So we'll just run a intro about you. So friends, let's have the video on Kanwaljit ji, please. कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत मुझे अपने ख्वाबों की बाहों में पाकर कभी नींद में मुस्कुराती तो होगी उसी नींद में कसम सा कर सराहने से तकिए गिराती तो होगी कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की Kanwaljit ji, that was a small intro into your vast body of work. And Kanwaljit ji, you are on Women TV Network, and Women TV India Network welcomes you. There is Rani Sharma who's saying, "Hello, sir. We have been seeing you on screen from last 30 years. So all your fans are waiting eagerly to listen to you." Remind me of those years. So Kanwaljit ji, they're all waiting eagerly to listen to you. Hello, sir. Wow, hello, sir. Have been a fan of the series Sans. Comments just coming up, Kanwaljit ji. I can also see, so I can read it. So you ask me the questions you want to. So Kanwaljit ji. So Kanwaljit ji, you started this amazing career of yours with a women's magazine called Femina, if I'm not wrong. No, why? How can I start my career with a women's magazine Femina? Did you apply for a FTI entrance through the Femina ad? There was a magazine kept at my friend's place, and initially I just wanted to get out of the small town. I thought I will be able to do better things if I was out in the world rather than in a small place, small town called San. It's no more small, and many people have done such great things there. But that's what I thought. That whatever I'm saying is what I thought and my views. So no offense meant. So I tried for NDA. I tried for Dufferin, which is Indian Merchant Navy. तो मैं जब 17 साल का था तो मैंने NDA के लिए भी ट्राई किया, पर उसमें क्या हुआ, I cracked the UPSC. फिर मैं SSB से भी पास हो गया, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, और वहाँ से मुझे मेडिकल के लिए भेजा गया, एयरफोर्स. I had applied for Air Force. So I had problem with my hearing in my right ear.
तो मुझे लिया नहीं गया। तो वो मैं आज तक हमेशा बोलता हूँ कि वो सिलेक्टिव हियरिंग का इस्तेमाल करता रहा हूँ, और जो मुझे बात सुननी होती है वो सुनता हूँ, बाकी So, Kanwalji ji, that is quite a clever thing to do. हाँ That's हाँ, स्पेशली so. बीवी के साथ। So Kanwalji ji, I would. You have a wonderful sense of humor, and you have a very favorite I don't joke. know, You have a wonderful joke about people Tiger generally Woods. call it rude. Sorry, Huh? Sorry, I you said were you saying have a something, I didn't wonderful hear it. sense of humor. You have Uh-huh. a wonderful sense of humor, Thank you. and you have a favorite joke about God playing Tiger Woods. When God decides to play Tiger Woods one day, would you like to share it with us? नहीं, वो कहने लगे God after making this world, and Adam and Eve and everybody on a Saturday or Sunday, I don't know, he gets an off. He was very tired, and he told his right hand man, he said, let's go play golf. तो उसने कहा, you can't play golf just like that. You have to have years of training. You have to you have to learn how to hit the ball and things like that. He said, no, I've seen that guy from where, America, what's his name? He said, Tiger Woods. Yeah. I think I can play better than him. So what could the guy say? He said, all right. He took him to the uh, putting ground or whatever, and they started playing. तो वहाँ पे क्या था? It was close to a sea. So when God hit the ball, it went into the sea. So he walked on water to get the ball. Meanwhile, other people were watching him. This guy walking on the water. So they asked the guy, says, "What does this guy think he is, man? He's God?" He said, "No, it's worse. This fellow thinks he's Tiger Woods." So I thought that was very that funny. was quite a joke. Uh-huh. Kanwalji ji, that was a hilarious joke. I really loved it. I didn't hear you laughing, yaar. No, that was really funny. That was really funny. So, Yeah, so some people Kanwalji don't ji, get it. So, sorry? I said some people don't. Anyways, you go ahead. Yeah. No, that's okay. That's okay. The ones who get it will have a good laugh. Yeah. So Kanwalji ji, there was this epic serial, Farman. Farman. Many people know you as Sadbir of Bunyad, Sadbir of the mega serial Bunyad. But then there was this serial. Yes, you are known as Satbir of the mega serial Bunyad. But there was this epic serial called Farman by your favorite director, Lake Tandonji. And this was based on the novel Alampana, I think. And yes, it brought to life Hyderabad, the culture of Hyderabad, the culture of the Nawabs, and the disintegration of Tehzeeb. And you played a dark character. कौन है भाई? सुनीता, थैंक यू। तुमको भाई मुझसे बात ही करो, देख के क्या करूँ? अब तो वो ऐसा दिखता भी नहीं जब मैं एक जमाने में दिखता था। तो बातें होती रहे, बहुत बस बात से बात चले, ये बहुत जरूरी है। हाँ, कहिए। वो मैं पढ़ रहा था। तो Kanwalji ji, people are just sending you comments after comments, but I have to keep on talking to you. Yeah, you have to. Yes, thank you. So Kanwalji ji, you play this dark character of Azhar Nawab. So Farman was like a intense Mills and Bones romance. Farman was like a intense Mills and Bones romance, but it had more of poetry, and it was layered with interesting dialects. So मैंने कहीं पढ़ा कि after you played this शानदार role of Azhar Nawab, you loved to carry on being in that role of Azhar Nawab. Is that true? जी हाँ, वो ऐसा हुआ कि मैं इस रोल में ऐसा, क्योंकि हमने we were in Hyderabad for 45 days. We were shooting there. We completed the series, and that character really, I loved the character. I don't think it was dark. He had his reasons to be rude and nasty with the girl, the psychological background.
But otherwise, I think I like this character much better than I would say Sabbir or any other Darar जो लेख जी के साथ मैंने दूसरा किया था करण खन्ना ये सबको मिला दिया जाए तो मुझे फरमान सबसे बेहतर लगता है उसमें बड़े लेयर्स थे बहुत कमाल का कैरेक्टर था एंड आई रियली एंजॉयड प्लेइंग इट तो वो इतना मेरे अंदर समा गया जनरली आई डोंट टेक सो लॉन्ग टू take the skin of the character off me. But this one took a long time because after this series, we went to Nepal for a holiday. So we were staying in a hotel there. तो शाम को मैं बार में चला जाता था और वहां पे ज्यादातर अंग्रेज होते थे है ना ये किसका फोन आ रहा है मेरा तो नहीं आ रहा अच्छा खैर तो वहां पे अंग्रेज होते थे ज्यादातर आप सुन रही हैं कैन यू हियर मी Can you hear me? Sorry, Kanwaljit ji, 1 minute, please. आपका फोन बज रहा है Sorry, I'm very sorry, Kanwaljit ji. That was a very untimely call. नहीं, Sorry. आप मेरा नाम नहीं लीजिए मेरा नाम आप बहुत बार लेती हैं और बहुत लंबा नाम है तो आधा टाइम तो इसमें ही वेस्ट हो जाता है कंवल जी नहीं हाँ मेरा नाम लीजिए नहीं ओके 5-6 बार एक सेंटेंस में तो मैं ये कह रहा था फिर वहाँ वो बार में जाता था मैं वहाँ अंग्रेजी बैठे रहते थे तो उस वक्त तक मैं अपने आप को मैं इंट्रोड्यूस करता रहा आज़र नवाब क्योंकि उनको तो मालूम नहीं था ये कमबख्त है कौन they didn't know me from Adams so when we met we started talking and we introduced each other I said I am Azhar Nawab तो ये कैरेक्टर मेरे साथ काफी देर तक रहा because I was really in love with this one. So Kanwaljit ji, this character really stayed on with you for a long time. This character was I just said it. हाँ जी. But I must tell you, वो शानदार role था आपका. That romantic persona that you emitted, it was really so entertaining that you were a big hit with everyone. I am very fond of it. I am myself very fond of it. So we want you to know that we really loved you in Farman, Kanwaljit ji. Thank you so much. So we have made a magic mosaic of yours, of your many experiences, and yes. That's Ghalib. That is Ghalib. You played Mirza Ghalib. So I think you are a fan of Ghalib, and you say that unka dimag jo hai dil ki tarah dhadakta hai. This is what you say about Ghalib, I think. And बहुत कुछ ये तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करती रहती हो. Yes. So you are very fond of Ghalib, and you played his role in that play, which went on for a very long time, and it was very much appreciated. This play on Ghalib. हाँ जी ये प्रॉब्लम क्या है कि मैं आई एम नॉट अ थिएटर एक्टर एट ऑल I am from the FTII where we drank cinema, we slept cinema, we dreamed cinema. Everything was to do with cinema. We saw about 5-6 films a day, and then there were classes about film acting. Everything was concerning film. And theater मैंने किया ही नहीं उससे पहले ना मैंने कुछ एक्टिंग की थी उससे पहले मैं देवानंद का फैन था वो मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा अगर हमारे पास टाइम हुआ तो ये जब मैं यहाँ पे आया तो कई ऑफर आए मुझे थिएटर करने के लिए पर मैं घबराता बहुत था मुझे साइकोलॉजिकल फियर था आई हैड फियर ऑफ थिएटर कि मैं लोगों के सामने खड़ा हूँ मेरे को नाइटमेयर्स आते थे कि आई एम इन द थिएटर ऑन स्टेज एंड सडनली आई फॉरगेट माय लाइन्स और मैं पसीना होके ऐसा घबरा के उठता था लेकिन ये गालिब का प्ले था जो 50 साल से चला आ रहा है इसको सबसे पहले बलराज साहनी साहब करते थे और फिर इसको कई और एक्टर्स ने किया है और बीच में वो जो जिसको खुदाए एक्टिंग कहते हैं नसीरुद्दीन शाह वो कर चुके थे गालिब तो मेरी क्या औकात है मैं गालिब करूँगा तो मैं तो घबरा गया मैं वो डायरेक्टर जब आए मैंने कहा मैं नहीं करूँगा लेकिन ये इप्टा के लोग थे
अब इप्टा में मेरी दोस्त शबाना भी हैं, बिकॉज ये इप्टा चलाए यहाँ शुरू जो हुआ था वो कैफी साहब उनके अब्बा की वजह से हुआ था. वो ही वॉज द चेयरमैन और टॉप बॉस इन इप्टा. So now Shabana's of course taken over and she's very involved with IPTA's जो भी होता है वहाँ पे. तो उसने शबाना को शिकायत लगा दी कि ये कमलजीत कर नहीं रहा. तो शबाना कॉल्ड मी. मैंने कहा यू नो वेरी वेल आई एम अफ्रेड ऑफ थिएटर, आई कैन नॉट परफॉर्म ऑन थिएटर बिकॉज आई हैव नेवर डन इट, एंड दैट टू गालिब जिसको बलराज सानी कर चुके हैं, एंड वो दूसरा ये मेरे खुदा जिसको बोलते हैं एक्टिंग का नसीरुद्दीन शाह कर चुका है, जिसकी मैं बेतहाशा इज्जत करता हूँ और मुझे लगता है कि उससे बड़ा कोई एक्टर ही नहीं है वो. और मैं कैसे जुर्रत कर सकता हूँ टू डू इट. नहीं, यू नो गालिब. अरे knowing गालिब poetry doesn't make me a गालिब, or a theater actor. So she told me one very interesting thing. She said, look, this is the only medium for an actor. क्योंकि आप जब वहाँ कर रहे होते हैं काम स्टेज पे अपना इधर फिल्म में, तो वहाँ डायरेक्टर बैठा रहता है, एट एवरी पॉइंट ही इज टेलिंग यू व्हाट टू डू. बट हियर once the actor's on stage, he does his own thing, man. He doesn't have to be told, or nobody can tell him कि अब नहीं ऐसा नहीं यार ये क्या कर रहा हो. तो मैं खूब मजे लेता था इस बात पे, क्योंकि जो मैं गालिब को जैसे समझता हूँ और क्या कितना समझता हूँ वो तो मुझे बहुत ही कम है, क्योंकि गालिब को जितना पढ़ो उतना वो कॉम्प्लिकेट होता जाता है और उतना आसान भी होता जाता है. बड़े अजीब मकामात से गुजरता है आदमी गालिब को पढ़ते हुए. और तो फिर मैंने जब किया तो मुझे खून लग गया और मुझे मजा आने लगा. तो थैंक्स टू शबाना एंड थैंक्स टू दिस डायरेक्टर रमेश तलवार who offered me this, and we did a few shows, yes, and they were quite popular. They had they became very popular here. but उसके बाद ये आपका कोविड आ गया तो हमको we were to do perform in NCPA, one of the best theaters here in Bombay, in town, South Bombay. तो वहाँ हमको जाना था, वहाँ करना था प्ले, लेकिन क्योंकि इसकी वजह से सब कैंसिल हो गया. तो अब देखिए कब शुरू होते हैं थिएटर्स और कब हम फिर पर आपने कमाल कर दिया मिर्जा गालिब के कैरेक्टर में. यू प्लेड इट सो वेल that it was really, you were very much appreciated in that role. तो आपको क्या पता लगा गालिब के कैरेक्टर के बारे में, क्या डिफरेंट फैसेट्स आपको पता लगा इस रोल करते करते? नहीं, गालिब के बारे में मैं सुनता बहुत था. एक जावेद साहब हैं एक पाकिस्तान के, वो गालिब को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, तो उनको मैंने बहुत सुना. गालिब मैंने खुद भी पढ़ा था. मेरे चचा हैं, ही इज 95 नाउ, उनके साथ बहुत बातें हुई गालिब के बारे में. और मेरे दोस्त हैं रमेश दत्त, वो गालिब को हम बचपन से गालिब पढ़ते आए हैं उनके साथ, और उनके शेर जैसे लोग अंताक्षरी खेलते थे, हम गालिब के शेरों के साथ अंताक्षरी करते थे. तो ये सब हम करते रहे. एक ज़माने में बहुत शेर भी याद थे और उनकी पर्सनैलिटी और के अलग अलग रंग, वो सब. बस ये था कि घबराया हुआ था मैं, और वो जब घबराहट निकली और जब पहले 2-3 शो हुए तो मुझे लगा कि मैं उस मयार पे नहीं आया हूँ जहाँ होना चाहिए. मुझे कम से कम अपने मयार के टॉप पे तो आना चाहिए. दूसरों के मुकाबले तो बहुत आगे की बात है. लेकिन मेरे डायरेक्टर ने लास्ट जब हमने परफॉर्मेंस किया तो उसने एक सेंटेंस बोला मुझे, जो जिसने मेरा दिल बड़ा बढ़ाया, और मैंने कहा अगला मैं इससे भी अच्छा करूँगा. उन्होंने कहा आज तूने सेंचुरी मारी है. तो आई वाज वेरी हैप्पी. So that was a big compliment, I think, coming your way. Yes, as a theater actor, yes, because I had never performed on theater, I had never done anything in theater. And क्या अच्छा मौसम हो रहा है. आपके यहाँ बरसात अब तक है या नहीं? No, it's quite pleasant here as well. As we know, the festive season is coming. And we are celebrating this evening with poetry and your presence. Would you like to recite some lines? Would you like to recite some lines?
नहीं, अब एकदम आप कहेंगी लाइन रिसाइट करो तो मुझे मालूम नहीं, पर गालिब की गजल वही, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब ये जो है, इसमें ये बड़ा सिंपल शेर है, लेकिन देखिए ना, शेर की सिंपलिसिटी और शायर की, कि वो कहता है दिले नादा तुझे हुआ क्या, ए नादान दिल तुझे हुआ क्या, और उसी से पूछ रहा कि आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हमें मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। ये बहुत खूबसूरत गज़ल है, ये भी मैं पढ़ता था उसमें। और हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी, ये अच्छा, ये तो दूसरा शेर हो गया, तो मिक्सअप हो जाता है दिमाग में, कुछ शेर इस गज़ल के उधर चले जाते हैं, उस गज़ल जब तक काफ़िए पे आता आदमी कहता नहीं यार ये तो यहाँ का है ही नहीं, इस तो इस गांव का है ही नहीं। जी हाँ। तो अभी मैंने पोस्ट किया आपके साथ कॉन्वर्सेशन का, तो किसी का कमेंट आया दैट इन सत्ते पे सत्ता he was much better looking than Amitabh Bachchan even. Somebody gave this comment on you. So हाउ you must be स्वीट। aware of it, that you're a very good looking person. I'm sure you नहीं must be मुझे, aware of it. नहीं मैं अब रस्मन भी आदमी कहता ही है कि नहीं मुझे नहीं मालूम था, पर वाकई मुझे यकीन मानिए, मेरा सिर्फ एक इरादा था कि सहारनपुर से जल्दी बाहर निकलो भाई, तो जो मेरे सामने कंपटीशन आता ना मैं वो देता था। इसमें आ गया, मैं आ गया यहाँ, और मुझे कुछ इस बात का अंदाजा नहीं था, क्योंकि कभी एक्टिंग की नहीं थी, कभी जाने का सोचा भी नहीं था। एक देवानंद साहब का मैं फैन था, उनकी पिक्चर में अकेले देखने जाता था, क्योंकि मुझे जब कोई इधर उधर मजाक करे इधर देवानंद के साहब के बारे में तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो उन दिनों तो हम यही समझते थे 3 एक्टर होते हैं और तीनों में से किसी की कॉपी करनी पड़ती है एक्टर बनने के लिए, यानी राज साहब, राज कपूर साहब, दिलीप कुमार साहब और देवानंद साहब। हम देवानंद साहब को बहुत से मोहब्बत करते थे। तो जब मैंने ये अप्लाई किया FTII के लिए, तो मुझे दिल्ली जाना था फॉर द ऑडिशन। तो मेरे चचा जो कि थोड़े बहुत थिएटर से इन्वॉल्व थे, ही टुक मी टू हबीब तनवीर साहब हाउस। इसे कल तुम्हारा वो है ऑडिशन, तो आज शाम उनके यहाँ चलेंगे। मैंने उनको बोला है मेरा नेव्यू है इधर और उसका कल ऑडिशन है, आप जरा उसके साथ 2-3 बातें कर लीजिए, मे बी ही विल बी हेल्प्ड बिकॉज ही नेवर ट्राइड एक्टिंग बिफोर। तो मैं हबीब साहब को मिला, तो हबीब साहब ने मुझे बड़े प्यार से उन्होंने बोला कि भाई यहाँ क्या कर रहे हो कल। तो मैंने कहा, उन्होंने मुझे एक पीस भेजा है 12th नाइट का, शेक्सपियर का, हिंदी में ट्रांसलेटेड है, मालवेलियो का कैरेक्टर है, वो मैंने किया है, उसका सोलोलिकी वो मैं करता रहा हूँ और मुझे याद है। तो कहने लगे करके दिखाओ, मैंने कहा हाँ जी हाँ। तो मैंने पूरा वो मुंडी वुंडी हिला के देव साहब की तरह पूरा कर दिया उनके सामने, वो यूं देख रहे थे। तो मैंने कहा तो खूब ताली वाली बजाएंगे और वाह वाह होगी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो कहने लगा ये क्या था। मैं और भी मायूस हो गया, मैंने कहा ये क्या था, अरे भाई मैं महीना भर करता रहा हूँ ये काम, इसको याद करता रहा हूँ, और देव साहब को मैंने इसमें ऐसा उसमें खोल दिया है और ये पूछ रहे हैं ये क्या था। तो मैंने बड़ा घबराते हुए कहा, मैंने कहा सर ये मैंने याद किया ऐसे, और मैं कह दिया क्यों, तो देवानंद का क्यों कॉपी कर रहे थे। तो मैंने कहा सर मुझे आता ही वो है, मुझे तो मालूम नहीं क्या होता है एक्टिंग में, तो देव साहब का फैन हूँ इसलिए कर दिया। कह रहे नहीं 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 भाई, देखो देव साहब जो कर रहे हैं उनको वो करने दो, तुम वो करो जो तुम हो, इनफैक्ट बी हु यू आर। और फिर मैंने देखा है कि जो फ्रॉम बीइंग all the organic reality or organic thing, yeah, they come out from being, not from becoming. You get my point? So you have to be. अब उन्होंने कहा जैसे तुम खत उठाते हो तो यूं उठाने की जरूरत नहीं है, जैसे तुम घर पे उठाओगे खत आया तो कैसे देखोगे अपना खत। तो मैंने कहा वो एक्टिंग थोड़ी हुई। कहने लगे नहीं वो एक्टिंग नहीं होनी चाहिए, एक्टिंग को अपने आप से निकाल दो, तराश दो, वो एक्स्ट्रा घुसा हुआ है। जो एक्टर्स ज़्यादा कुछ करते हैं वो एक्टिंग नहीं है। एक्टिंग तो सिर्फ
बहुत ही सिंप्लिसिटी है। जितना आदमी सिंपल होता रहता है एज अ राइटर, एज अ पोएट, एज अ अपना पेंटर, जितना सिंपल होता रहता है, सिंपल कैसे होता है, बहुत मेहनत के बाद एक्टर जो आप समझते हैं ये बड़ा इजीली यार इसने कर दिया, वो इजीली नहीं है, उसके पीछे बहुत मेहनत है। और वो जो ईज आई है उस मेहनत की वजह से आई है, जो आपको लग रहा है यार ये तो हम भी कर सकते हैं, है ना। तो तो ये आपने बहुत बहुत बड़ा राज एक हमारे साथ शेयर किया। अब भवानी तुम जरा उधर हो जाओ। आप आपने हमारे साथ एक बहुत बड़ा राज शेयर किया कि जो मास्टर्स होते हैं वो मतलब ऐसे काम करते हैं जैसे कि एवरीथिंग इज इजी। बेसिकली दिस इज हाउ ऑल मास्टर्स बिहेव, यू नो, एज दो इट इज वेरी इजी। तो कन्वलजीत जी, आपका क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया तो वन ऑफ योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, यू नो, ही इज द डीजी ऑफ पुलिस एंड ही Oh yes. सेड yes, he said he's a warm human being, a man with a heart of gold, very caring, very sensitive. ये आपके बारे में उनका कहना था। तो मुझे एक बात बताइए, आपने बुनियाद में सतबीर का रोल प्ले किया जो कि बहुत शाय और बहुत इनोसेंट सा लड़का है, और फिर आपने फरमान में अजहर नवाब का रोल किया जो रूड है, जो एरोगेंट है। असल में आप हैं क्या? Are you Satbir or are you Azhar Nawab? What are you actually? I'm neither. I have my own personality. See, and every time I tell, पहले तो मैं आलोक साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने यार ऐसा आदमी बहुत कम पैदा होते हैं ऐसे लोग। He's a wonderful human being. Thank you sir. Anyways, एक तो ना ब्लैक होता आदमी ना वाइट होता है। अब ब्लैक एंड व्हाइट दो स्पेक्ट्रम्स हैं, दो पोस्ट्स हैं। आदमी कैन बी नियर ब्लैक, दैट ग्रे, और नियर व्हाइट, दैट ग्रे अगेन। तो इन बिटवीन इज ऑल ग्रे, डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे। तो आदमी उस लेवल पे होता है। आदमी दो ये नहीं है आइदर ब्लैक और तो मेरा जो रुझान है वो अच्छी तरफ ही होगा, क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ मोहब्बत बहुत थी, प्यार बहुत था, एक दूसरे पे विश्वास बहुत था, और हम इकट्ठे बहुत थे। तो ये बेसिकली मेरा बचपन से आया, और ऐसे ही मेरे दोस्त हैं जिनके तो साथ मैं हाँ जी, हाँ जी, जिनके साथ मैं आज तक जुड़ा हूँ जी। So basically, you come across as a very warm persona, you know, which is very difficult to find in a very popular and well-loved actor. You come across as such a warm human being who is, you know, with a wonderful sense of humor and with an artistic side also. So Kanwaljit ji, अभी हमने वो फिल्म देखी थी, Netflix पे था. You know, you played artist Raina in Tribhanga. So yes. So how was it playing the role of an artist? आपको कैसे लगा ये playing the role of an artist? आप में क्या feelings आई? I have been very fond of this art right from my childhood. Again, I was introduced to painting by my uncle. मैं उनके साथ गर्मियों की छुट्टियों में जाता था, तो वो मुझे एक बार वहाँ ले गए। बच्चा था मैं, अपना नैनीताल नहीं, अपना मनाली, और वहाँ वो मुझे उस रोरिच की गैलरी में ले गए। अब वो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ पेंटिंग्स एंड समथिंग स्ट्रक, यू नो, ए कॉर्ड। मैंने कहा यार ये तो कमाल है, इसने जो क्रिएट किया है वो मुझे आई कुडंट एक्सप्लेन, बट it impressed me a lot, it influenced me a lot. और उसके बाद मैं जहाँ भी जाता हूँ सबसे पहले ये ढूंढता हूँ कि आर्ट गैलरी कहाँ है इस शहर में, चाहे वो अब्रॉड हो या हिंदुस्तान हो, और दूसरे यहाँ पे थिएटर में म्यूजिक की कोई सिम्फनी हो रही है या क्लासिकल म्यूजिक का प्रोग्राम है, वो कहाँ है। तो ये दो चीज़ें ढूंढता हूँ। तो पेंटिंग मेरी तब से चली आ रही है। और फिर उसके बाद मेरा बेटा है आदित्य सिंह,
ही इज पेंट्स, और उसका काम जो है पूरी दुनिया में इधर उधर जा रहा है और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। अभी उसकी सोलो एग्जीबिशन हुई थी जहांगीर आर्ट गैलरी में, द बिगेस्ट गैलरी वी हैव इन हियर इन बॉम्बे, इन साउथ ऑफ बॉम्बे अगेन, and Mr. Bachchan and Mr. Javed Akhtar had come to open it, to inaugurate it. So we know, Yes. so we know Aditya Singh is a very talented artist, and we also know of him, and we are proud that you have a son like Aditya Singh, and so your association. My older son is also, he's into music. He makes music. Very talented again. Yes. So basically, they have taken your artistic genes as well, I think. आप both the parents, वो मेरी वाइफ जो है अनुराधा, वो एक्ट्रेस हैं, वो पेंटिंग भी करती थोड़ी बहुत, और अब फिर से शुरू की है। आई थिंक आदित्य हैज इंस्पायर्ड हर एंड शी स्टार्टेड पेंटिंग। इनफैक्ट माय मदर, वो आदित्य ने उनको भी थोड़े से चारकोल वगैरह लेके दिए थे, तो वो काफ़ी 15-20 साल से पेंट कर रही है। शी ओनली पेंट्स फ्लावर्स। तो वो उसने पूछा भी कि भाई आप फ्लावर्स ही क्यों पेंट करते हैं? कहते हैं मैं जब सहारनपुर में थी तो मेरा गार्डन था बहुत खूबसूरत सा, यहाँ गार्डन तो है नहीं, तो मैं फ्लावर्स ही पेंट करती हूँ। तो उसने ही पुट देम अप इन हिज मीडिया दिस थिंग, इंस्टा वगैरह में, एंड हिज फ्रेंड्स हैव बॉट हर वर्क आल्सो, सो दैट्स ग्रेट। selling paintings at 90. So that's really amazing, Kanwaljit ji, and I think family that paints together stays together. Do you agree? I think that's. But I'm the only man out because I don't paint. I only admire and appreciate painting. I can't paint. No, but I had seen a painting of yourself in your balcony, where I mean, it was on an easel in your balcony. I had seen a picture of your painting on an easel in your balcony. हाँ, वो balcony मेरी वो लोनावाला की है, वो उसमें वो painting मेरी नहीं थी। Okay, so Kanwaljit ji, I'm going to ask you some random questions. Let's see what's your take on them. So tell me, what do you think about urban sunrises? Urban sunrises. अर्बन सनराइजेस, अर्बन सनराइज जो होता है ना, जो सिटीज में सनराइज होता है, उसके बारे में आपका क्या राय है? अरे नहीं, अर्बन सनराइज में मैंने एक, आई यूज्ड टू बी अ फोटोग्राफर, अ गुड फोटोग्राफर। मैंने एक इमेज देखा था। आई वाज ट्रैवलिंग और एक बस ट्रक के पीछे से वो एग्जॉस्ट से बहुत कुछ निकल रहा था, अपना ये फ्यूम्स जो हैं वो निकल रही थी, और उसके पीछे सन था which was rising and that smoke was covering that sun, so that could be an urban sunrise image. I think and that has been with me for this happened many years ago. This probably happened in Saharanpur when I was there, and I used to be be a photographer there. I had a dark room in my house, तो मैं करता था, और वो इमेज फिर मुझे मिला नहीं। हालांकि मैं कैमरा हमेशा लटकाए रखता था, वो इमेज मुझे कभी मिला नहीं। वो कभी ऐसे इमेज होते हैं, पास हो जाते हैं, फिर उसके बाद मैंने कहा यार, मैं अगर एक ट्रक हायर करूँ, उसका एग्जॉस्ट से निकलवाऊँ, वो पीछे से सूरज निकल रहा हो या ढल रहा हो, तो वो बड़ा आर्टिफिशियल सा लगेगा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल चीज आर्टिफिशियल लगती ही है, उसको आप कुछ भी कर लीजिए। So that is amazing. Urban sunrise के ऊपर आपका जो राय है, it is really amazing. And tell me one thing, Kanwaljit ji, नीला चश्मा के ऊपर आपका क्या राय है? Blue glasses. मैंने पता है। So they really look cool. मेरी तस्वीरें भी हैं नीले चश्मे में, वो रेबैन पहनता हूँ, मेरे फेवरेट हैं, वो रिफ्लेक्टिव भी होते हैं। हाँ, तो they look really classic. हाँ, मुझे very good. और मैंने पता है। So Kanwaljit जी, कुल्हड़ की चाय के बारे में आपका क्या राय है? कुल्हड़ की चाय। तो जवाब नहीं,
कुल्हड़ की चाय तो देख के मैं इतना एक्साइटेड हो गया था, इतना एक्साइटेड हो गया था व्हेन आई फर्स्ट सॉ इट इन चंडीगढ़। अभी रिसेंटली मैं जब शूटिंग करने गया था, वहाँ एक रेडी वाला एयरपोर्ट में, वो बेल्ट जो होती है जिसमें सामान आता है, वहां पे उस इलाके में खड़ा होके ही वाज सेलिंग कुल्हड़ वाली चाय। मैं तो दीवाना हो गया और मैंने उनके जो गुण गाने शुरू किए और तस्वीरें लेनी शुरू की। तो हमें तो ये एक सफर याद दिलाता है कुल्हड़ वाली चाय जो है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि चंडीगढ़ के जितने सारे लोग हैं सब आज आपको देख रहे हैं। They were eagerly अच्छा। waiting to listen to you. So, No, so yes, Kanwaljit ji, yes, they love you. They really love you very much. So, do you believe in ghosts? I love चंडीगढ़ too. I was there recently. अभी आजकल हालात तो कोविड की वजह से ज़्यादा नहीं घूम सका मैं, लेकिन मैं बहुत घूमता हूँ। मैं तो चला जाता हूँ ये 16 सेक्टर और, बट आई वाज स्टेइंग इन हायट व्हिच इज वेरी नेक्स्ट टू ये आपकी मॉल जो है एलांत्रा, क्या नाम है, एलांत्रा मॉल है ना, Elante, Elante. वहाँ जो भी है, तो वो व्हिच इज वेरी क्लोज टू हायट होटल। तो मैं वहाँ रोज रात को जाता था। वहाँ की रसमलाई बहुत अच्छी है, कभी खा के देखिएगा। So Kanwaljit ji, do you believe in ghosts? Do you believe in ghosts? यस, You घोस्ट do? ऑफ द पास्ट है। Ghosts of the I do. past? हाँ, वो पास्ट वो के होते हैं? घोस्ट जो आपको साइकोलॉजी आपकी सबकॉन्शियस माइंड में है, उनमें बिलीव करता हूँ मैं, जो आपको बॉक डाउन करते हैं। नॉट ये ऐसा थोड़ी वो भूत यहाँ बैठा है ऐसे नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल भूत, यस, ऑफ द माइंड। So I think that is a very unique take on ghosts. I mean, it's one of the most unique takes on ghosts that I have ever come across. तो FTII के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? FTII. जय हो, जय हो, जय हो FTII. And Tagore, what do you want to say about Tagore? Tagore, Rabindranath Tagore. हाँ, टैगोर सर को कौन नहीं मतलब एक्सेप्ट करेगा, या उनकी कोई कौन इज्जत नहीं करेगा। बहुत खूबसूरत। मैंने एक फिल्म की गुलजार भाई की बेटी के साथ मेरा था, वो राजी। तो मैं वो कहने लगी, भाई आपको व्हाट वुड यू बी योर how much should we tell the production to? I said no, I don't want anything यार, ऐसी क्या बात है, you're like my daughter. I mean, ये गुलजार भाई मेरे भाई हैं, मेरी जान है। तो मैंने की वो फिल्म, छोटा सा रोल था, आप उसके लिए मैं क्या मांगूंगा, क्या देंगे लोग। तो जब मैं उनको पता लगा, तो उन्होंने मुझे वो जो किताब है ऑटोग्राफ्ट, इतनी ब्यूटीफुल किताबें हैं दो, उन्होंने भेजी मेरे लिए, टैगोर की पोएट्री की ट्रांसलेशंस जो की हैं उन्होंने। But even in that little role in Razi, you were standing out as usual. तो आप हमेशा कहते हैं that in life we should all try to not blend in but stand out. Is this what you believe in? Yeah. Is this what you believe in? We are not here to fit in. अब मैं गुरु, ये जो गुरु हैं, Do not try to fit in. You were meant to stand out. That's right. Because ये जो गुरु हैं, that's why I don't believe in gurus. जो भी गुरु है उसको आप फॉलो कर रहे हैं तो वहीं पहुंचेंगे जहां वो पहुंचा कमबख्त। भाई आसमान और भी हैं, रास्ते और भी हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम कहती है कि आई टुक द वन दैट वाज लीस्ट ट्रैवल्ड बाय। तो और मेरे भी रहे हैं भाई। इनिशियली मैं जे कृष्णमूर्ति का बड़ा फैन था, उनको सुनने भी जाता था। फिर देन सडनली आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू नीचे। I am 100% Nietzsche. That became my Bible. Thus Spake Zarathustra became my Bible. फिर मैंने कहा अब उससे भी आगे निकलते हैं। उससे आगे क्या निकलेंगे, बहुत कमाल का आदमी है। उसको मैं कहता हूँ ऑस्कर वाइल्ड से लेके हमारे यहाँ पे सारे गुरु उसकी बातें कहते हैं, and nobody acknowledges him. The only original philosopher in this world is either those early ones, Socrates and Plato, or Nietzsche. I am a great admirer of Nietzsche. But Kanwaljit ji, you say that on some days
Krishnamurti doesn't work, and no philosopher works. It is the days when your punching bags work. Is that true? That is right. Napoleon Hill there's so doesn't much, work. there's so much energy that gathers within you, and you're not doing anything. You want to do something, so you go and punch the bag, है ना? To take the steam out. तो उसमें ना आपका जय कृष्णमूर्ति आपकी मदद करेगा, ना नीचे मदद करेगा, ना सार्त्र मदद करेगा, ना कोई मदद करेगा. So I think you have amazing takes on everything, Kanwaljit ji. It's been amazing having you on the show and talking all things artistic with you. You have a unique take on each and everything. So Kanwaljit ji, आपका एक favorite quote है. आप कहते हैं कि throw your dreams into the space, and then they will come back to you in a new form, maybe a new life, a new friend, a new love, a new country. आपका क्या राय है? What would you like to say? ये एक बच्ची है जिसका नाम जेसिका है, उसने उसकी इंस्टाग्राम में देखा था मैंने, और वो मैंने वहां से लिया है. तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा. इसमें एक बात थी, इसमें एक अबैंडननेस थी, इसमें एक फैलाव था, तो मुझे अच्छी लगी बात, और तो वो मैंने अपने इंस्टा में डाल दी. बस ये था. वो मेरा नहीं है, पर मेरे जैसी बात करता है. So Kanwaljit जी, मैं आपको पूछना चाहूंगी, वैंकूवर के सनसेट्स के बारे में आपका क्या राय है? सनसेट्स इन वैंकूवर. सनसेट इन वैंकूवर. ओ सनसेट के पीछे क्यों पड़ेगी भैया आप? और भी बहुत कुछ होता है इस दुनिया में. चांद निकलता है. वैंकूवर के सनसेट के बारे में आपका क्या राय है? हैं? वैंकूवर के सनसेट के बारे में आपका क्या राय है? वैंकूवर का सनसेट बहुत खूबसूरत है. मैं वहां पे एक जगह है माउंटेन रॉक, तो वहां जाता हूँ, which is very close to Vancouver, which is one of my favorite places, and it has one of the best bars in town, and we say open bars looking into the sea, and then you see the sunset, and sunset everywhere is so beautiful. Even here in Bombay we get lovely sunset. यहाँ पे बड़ा खूबसूरत सनसेट होता है यहाँ हमारे बाहर समंदर में. So do you love sunset photography? आप पसंद करते हैं sunset photography? Do you like sunset photography? हाँ, मैंने सनसेट का फोटोग्राफ्स काफी लिए हैं. सनराइज के जो नए फोटोग्राफर होते हैं वो सन के पीछे बहुत पड़ते हैं. मून का एक्सपोजर है नहीं उनके पास, सन का एक्सपोजर होता है. तो You have a wonderful sense of humor, Kanwaljit ji. It's been wonderful having you on the show and listening to your wonderful takes on everything. तो आप हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे? Would you like to give a message to our viewers? Thank you so much. बस यूं ही हमारा हौसला बढ़ाते रहिए और हमें देखते रहिए, और अच्छा काम जो भी कर रहा है उसको सराहते रहिए. और बाकी आप कह रहे हैं जैसे चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ में आने वाला हूँ, तो जब आऊँगा तो फिर एक बार और मुलाकात होगी कभी. देखिए जी बिल्कुल. Kanwaljit ji, thank you so much for giving us your precious time, and it was a lovely conversation with you. Thank you for being with us on the show Magic Mosaic. Thank you, Kanwaljit ji. Thank you so much. Thank you so much. Can I?